एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास, नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिखाएंगे कौन कौन सी गाड़ियां हुई 2022 जी ऑटो अवार्ड्स की हकदार। करेंगे मेड इन इंडिया मर्सिडीज बेंज एस क्लास की टेस्ट ड्राइव। गोगोरो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे खास बातचीत और जानेंगे उनके इंडिया प्लान्स। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं 2022 जी ऑटो अवार्ड से। ये है सीजन 2। हमने सीजन 1 की सफलता के बाद सीजन 2 जी ऑटो अवार्ड्स लॉन्च किया और आप देखिए किन किन कंपनीज ने यहां बाजी मारी। हमारी खास रिपोर्ट। Hello and welcome to season 2 of the Z Auto Awards. The awards acknowledge the superior quality, smart technology, and excellent understanding of the customer's needs, honoring the best launches from the Indian automotive industry and saluting the best of the industry. The first award is Best Marketer of the Year, ladies and gentlemen, Audi. Viewers, Choice Car of the Year, Citroen C3. Let me now introduce to you our jury members. When Dr. Niharika Yadav, Dr. Yadav is a dental surgeon and superbike racer. She is also a UNESCO ambassador. Our next jury member, Swati Khandelwal. Swati Khandelwal is part of our beloved Z Media family, a business and automotive journalist and the executive editor Z Business and editor Z Ignition. Requesting Mr. Devdas Krishnan to kindly come up on stage once again to kindly felicitate our jury members. A small token of gratitude for our jury members. So we are starting off with the next set of awards. We have first lined up for you the facelift of the year. And the award, ladies and gentlemen, goes to Hyundai Venue. A round of applause, please. On to the next award, the new product of the year. And the award goes to Maruti Suzuki Grand Vitara. And the next award for the evening, Hatchback of the Year. And the award goes to Maruti Suzuki Baleno. On to the next award, MPV of the Year. And the award goes to Kia Karen. The next award, Design of the Year. And the award goes to Porsche Taycan. Next award, Electric Car of the Year, and the award goes to Tata Tiago EV. The next award, Sedan of the Year, and the award goes to Skoda Slavia. And the next award that we have lined up for you, Luxury Electric Car of the Year. And the award goes to BMW i4. Thank you very much, Mr. Reshmi Soja and Mr. Prashant Mohan. Thank you very much. On to the next set of awards, for which I would like to invite on stage Swati Khandelwal, Executive Editor Z Business, and Sridhar Mishra, Chief Revenue Officer Z Digital. Thank you very much. And the next award is the SUV of the Year, and the award goes to Mahindra Scorpio N. All right, on to the next award, the Brand of the Year four-wheeler, and the award goes to Mercedes-Benz. The next award for the evening, Luxury Car of the Year, and the award goes to Mercedes-Maybach S-Class.
On to the next award, Brand of the Year for the two-wheeler segment. And the award goes to TVS. On to the next award, Electric Scooter of the Year. And the award has been bagged by Ola S1, ladies and gentlemen. Next, we have lined up for you the award for the Motorcycle of the Year, and winning the award, Royal Enfield Hunter 350. Next, we have the Premium Motorcycle of the Year award, and the award goes to Honda Africa Twin. And last but not the least, the award for the Design of the Year in the two-wheeler segment. And the winner is Suzuki Katana. Thank you very much also to Mr. Sridhar Mishra and Swati Kambirwal. Thank you so much. ऑलराइट फ्रेंड्स, लग्जरी मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन है और मर्सिडीज बेंज ने अपनी मेड इन इंडिया एस क्लास भारतीय बाजार में लॉन्च की है। खास बात क्या है? 60 लाख रुपए गाड़ी अब सस्ती है पहले के मुकाबले। आप जानते हैं पहले ऑफ कोर्स ये CBU थी, यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, इंपोर्ट होती थी इंडिया में, तो टैक्सेस ज़्यादा थे। अब इसको इंडिया में बना रहे हैं तो बेटर प्राइसिंग आपको मिल रही है, और ऐसी वैसी बेटर नहीं, 60 लाख रुपए सस्ती। देखते हैं इस गाड़ी में क्या कुछ खास है। मर्सिडीज बेंज एक ऐसा नाम जो पूरे दुनिया में मशहूर है अपनी लग्जूरियस कार्स के लिए, लेकिन जब बात आती है एस क्लास की तो लग्जरी, फीचर, कंफर्ट, टेक एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इन सारी ही चीज़ों को ये कार एक अनदर लेवल पर जाकर पहुंचाती है। जब सबसे पहले ये मॉडल भारतीय बाज़ार में आया था तब कंपनी ने इसकी कीमत 2 करोड़ 17 लाख रुपए रखी थी, क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरह से इंपोर्ट होती थी और इसकी कीमत मायबाग से भी ज़्यादा थी। लेकिन अब इसे कम्प्लीटली लोकल असेंबल किया जाता है, जिसकी वजह से इस मेड इन इंडिया कार की कीमत अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। वो कितनी हुई है ये तो हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं फीचर्स एंड दिखने में, लुक्स वाइज इस गाड़ी में हमें क्या कुछ कंपनी ने ऑफर करा है। और शुरुआत करती इस कार की इस जगह से, क्योंकि एस क्लास की असली जगह यहीं पर है। वेल, तो हम आ गए हैं इस कार की असली जगह पे, जहां पर हर कोई बैठना चाहेगा, क्योंकि एस क्लास की बात हो तो कंफर्ट, लग्जरी, फीचर वाइज ये वही जगह है जहां पर आप हर एक चीज़ का आनंद ले सकते हो। जैसे कि मैं कंफर्ट की बात कर रहा था, लॉन्ग ड्राइव हो या सिटी ड्राइव, ये एक वो जगह है जहां पर आपको लगेगा कि आप किसी एक स्पा में बैठे हो, क्योंकि कंफर्ट, लग्जरी के मामले में हर एक चीज़ कंपनी ने यहाँ पर ऐड ऑन करी है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी सीट्स की बात की जाए तो ये सीट पूरी तरह से रिक्लाइन होती है। साथ ही इसकी अगली सीट को भी आप एक पुश बटन के साथ आगे कर सकते हो, जिसका एक डेमो मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। सो इस तरीके से लॉन्ग ड्राइव के वक्त हो या सिटी, जैसे कि मैंने कहा, पूरी तरह से ये सीट रिक्लाइन हो जाती है और आप एक कंफर्टेबल जर्नी का एक्सपीरियंस इस कार के साथ ज़रूर उठा सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि फ़ीचर्स के तौर पर यहाँ पर आपको दोनों ही सीट के पीछे टैब मिलता है, जहाँ पर आप कई फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सीट में आपको मसाज की सुविधा भी मिलती है, जिसके तहत अलग अलग मोड के ज़रिए आप मसाज का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही एम्बिएंट लाइटिंग हो, म्यूज़िक हो, नेविगेशन हो या और भी कई अन्य चीज़ें, हर एक चीज़ के फीचर का एक्सेस आपको इस टैब के साथ मिलता है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ फीचर है। साथ ही इस कार में आपको वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपके ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस बनाता है। वहीं आर्मरेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक टैब मिलता है, जो इस वक्त हमारे पास नहीं है। उसको आप यहाँ पर रख के भी काफ़ी इजीली और आसानी से सारे फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर पुश करने के बाद आप देख सकते हैं मोबाइल वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जहाँ पर आप अपने टैबलेट्स या फ़ोन को रख सकते हैं। वहीं साउंड सिस्टम की बात की जाए तो इस कार में आपको बर्मास्टर के 3D सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है। हालांकि 400D के मुकाबले यहाँ पर आपको
4D साउंड सिस्टम नहीं मिलता। जिस कार में आपने देखा था कि सीट्स में भी म्यूज़िक सिस्टम के स्पीकर दिए गए हैं, हालांकि उस लेवल पर इस कार में ऑफ़र नहीं किए गए हैं फीचर, लेकिन साउंड क्वालिटी वाइज इस सिस्टम के साथ भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से म्यूज़िक को सुन सकते हैं और गानों को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर सेंटर में आपको ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जहाँ पर दोनों ही तरफ अलग अलग तरीके से आप फैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं, साथ ही टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल लग्जरी के मामले में ये कार हर एक मामले में 10 आउट ऑफ 10 जरूर साबित होगी। इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें 3 अपहोल्स्ट्री विकल्प दिए गए हैं, जिसमें व्हाइट, सियाना ब्राउन और ब्लैक कलर का ऑप्शन आपको मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इस लग्जूरियस कार में आपको 12.8 इंच का OLED टच स्क्रीन, 12.3 इंच का डिजिटल MID और सेकेंड जनरेशन एम्बियस वॉइस कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बेंज एस क्लास में आपको फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, सेकेंड रो में वेंटिलेटेड एंड मसाज सीट फंक्शन, सेंट्रल आर्म रेस्ट पर टैबलेट, (64 कलर वाला एम्बिएंट लाइटिंग, और बम मास्टर 4D सराउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं बात करें सेफ्टी की तो सेफ्टी के लिहाज से इस कार में कंपनी ने 10 एयरबैग, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, स्टेबिलिटी कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, साइड कोलिजन मॉनिटरिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे शानदार सेफ्टी फीचर्स को भी ऐड किया है। लुक्स की बात करें तो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बेंज एस क्लास अपने पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फीचर पैक और अधिक सुरक्षित है। डिजाइन और स्टाइलिंग के लिहाज से इस कार में स्मूथ लाइंस और कई जगहों पर क्रोम एलिमेंट देखने को मिलते हैं। इस कार में रिवाइज फ्रंट और रियर बम्पर के अलावा नए डिजिटल LED हेडलाइट लगाए गए हैं, जो दिखने में इस कार को काफी एलिगेंट लुक देता है। इसका खास फीचर इसमें लगाया गया फ्लश फिटेड डोर हैंडल है, जो कि कार के पास चाबी ले जाने के बाद बाहर आ जाता है। इतना ही नहीं, ये कार एरोडायनामिक क्षमता को और भी बेहतर करता है। लग्जूरियस फीचर्स के मामले में तो ये कार काफी लाजवाब है। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस के मामले में ये कार कितनी ज्यादा शानदार है। इस वक्त हम चला रहे हैं मर्सिडीज बेंज की एस क्लास 350D वर्जन, और इस कार की अगर बात की जाए तो नो डाउट एस क्लास हमेशा से ही एक लग्जूरियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस दिलाती है। वैसे तो ये कार अमूमन जानी जाती है पीछे बैठकर सफारी का आनंद लेने के लिए, लेकिन अगर आपको कभी ये लगे कि इस कार को आपको चलाना भी है तो उस मामले में भी ये कार कोई कमी नहीं छोड़ती। इंजन की अगर बात की जाए तो इस कार में आपको मिलता है OM656 6 सिलेंडर डीजल इंजन,
जो 286 bhp की पावर और 600 Nm का टॉर्क पैदा करती है। वहीं इस कार में आपको पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो कि एक 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज यूनिट है। यह इंजन 367 bhp की पावर और 500 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इन दोनों ही इंजन को 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और 4मैटिक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम से लेस किया है। आफ्टर ऑल इट्स अ 2 टन कार, तो चलाने के मामले में हम ये नहीं भूल सकते कि एक हैवी और लंबी गाड़ी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब आप इस कार को चलाते हैं तो इन सारी चीज़ों का ख्याल तक आपको नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि मानो इस गाड़ी को आप बादलों पर चला रहे हो। इस कार में आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं जिसमें इको, क्लासिक, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस मोड मिलता है। साथ ही एक इंटेलिजेंट मोड भी मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंफर्टेबल ड्राइविंग के अलावा अगर आप चाहते हैं इस कार को अग्रेसिवली चलाना तो स्पोर्ट्स प्लस मोड आपके लिए यहाँ पर हाजिर है। और स्पोर्ट्स प्लस मोड पर डालते ही ये गाड़ी अपनी असली ताकत का एहसास आपको दिलाती है। सस्पेंशन एंड कंफर्ट के मामले में तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, लेकिन ये बात हम नहीं भूल सकते कि एस क्लास काफ़ी लंबी कार है। ऐसे में ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो या सिटी बम्प्स, उस वक्त आपको इस गाड़ी को चलाते वक्त थोड़ी बहुत सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। टायर्स की अगर हम बात करें तो 20 इंच के बजाय इस कार में आपको मिलते हैं 19 इंच के व्हील्स, जो रोड प्रेजेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से इस कार के साथ ये टायर काफ़ी बेहतर तरीके से फिट बैठते हैं। कीमत की बात करें तो इस मेड इन इंडिया शानदार लग्जरियस सेडान कार की शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 1.57 करोड़ रखी है। तो इस प्राइस सेगमेंट के साथ अगर आप भी कोई एक ऐसी लग्जरियस कार के तलाश में है जो शानदार फीचर्स, बेहतरीन लुक्स और दमदार परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करे, तो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बेंज एस क्लास आपके सारे प्रायोरिटीज पर फिट बैठेगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जिग्निशन में हम ऑन द अदर साइड आपके लिए और भी कुछ खास खबरें ऑटो वर्ल्ड की दुनिया से लेकर आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जिग्निशन। वेल, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इंडिया में ज़बरदस्त बूम है और कई सारी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में एंट्री करने की बात कर रही हैं जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही एक टाइवानीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने वाली इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग जिसमें वो मास्टर करती हैं, गोगोरो। जी हाँ, ये इंडिया में अपने प्लान्स लेकर आई हैं। क्या है इनके एग्जैक्ट प्लान्स और कितना बड़ा उनका पार्टिसिपेशन होगा इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी में, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। तो चलते हैं, गोगोरो इंडिया के कौशिक बर्मन हमारे साथ इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं जो बताएंगे उनके प्लान्स। कौशिक, वेलकम ऑन द शो। पहले तो हमें बताइए गोगोरो के क्या प्लान्स हैं इंडिया को लेकर, किस तरीके के आप प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में? तो पहली बात तो ये कि गोगोरो इज एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम प्ले है जिसमें व्हीकल्स हैं, बैटरीज हैं, बैटरी स्वैप स्टेशन है। ये पायलट जो हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, ये हमारा खुद का स्टडी के लिए है। हम इसको स्टडी करेंगे, मार्केट को स्टडी करने के लिए हम पायलट लॉन्च कर रहे हैं। ये कंसिस्टेंट फिलॉसफी है हमारा। हम कोई भी कंट्री में एंटर करने के पहले एक ऑपरेशनल पायलट लॉन्च करते हैं। इंडिया में हमने काफी रिसर्च किया है, लास्ट कुछ सालों से चल रहा है ये रिसर्च। और B2B जो मार्केट है, लॉजिस्टिक्स जो मार्केट है, इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि फ्यूल प्राइसेस कितना बढ़ गया है। तो एक राइडर जो आपके लिए जोमेटो राइडर या फिर स्विगी राइडर या जिप राइडर जो आपके लिए डिलीवरीज लेके आ रहा है, उसके लिए बहुत तकलीफ की बात है। मतलब ये हाई फ्यूल प्राइसेस, बट वो डायरेक्ट चार्जिंग करेगा तो उसको मतलब 2-3 घंटा लग जाएगा एक पूरा व्हीकल चार्ज करने के लिए। तो राइडर का लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बैटरी स्वैपिंग एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, और हम इस पायलट के द्वारा उसको हम स्टडी करेंगे।
बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा है, राइडर का बिहेवियर कैसा है, कितना स्पीड से चला रहा है, और जिप के प्लेटफॉर्म से हम इसके साथ क्लोजली हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसको स्केल करेंगे। ऑल राइट कौशिक, बट अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर आप कैसे देखते हैं इंडिया मार्केट को और आगे क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं? फर्स्ट चैलेंज ये है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी एकदम इनिशियल स्टेजेस में है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया के डेंस सिटीज, मतलब आप अगर टॉप 50 सिटीज ले लें इंडिया में जहाँ पे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन काम करती है, रहती है, वहाँ पे जगह नहीं है। तो चार्जर्स कहाँ लगाएंगे आप? मॉल्स में भी इतना ही लिमिटेड स्पेस है। अब तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग इशू है, राइट? तो इसको सॉल्व करने के लिए स्पेशली डेंस सिटीज में जहां पे बहुत ज्यादा लोग बसते हैं, लाइक प्रोविंसेस में, बैटरी स्वैपिंग इज मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन। बैटरी स्वैपिंग का मतलब ये है कि आपको बैटरी पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो गोगोरो की जिम्मेदारी है। बैटरी आप 24 घंटे कभी भी जाके गैस स्टेशन में, जैसे पेट्रोल स्टेशन में आप पेट्रोल कभी भी डाल सकते हैं गाड़ी में, बैटरी स्वैप स्टेशन आप कभी भी जा सकते हैं, 24 घंटे खुला रहेगा और 6 सेकंड में आप फुली चार्ज बैटरीज को अपने स्कूटर में डाल के चले जाएंगे। तो 6 सेकंड में जाना आना हो जाएगा आपका, मतलब बैटरी स्वैप का एक्सपीरियंस 6 सेकंड में हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड में ओनली सॉल्यूशन है जो 6 सेकंड में ये सॉल्व करता है राइडर के लिए। तो इससे क्या होगा, राइडर ज्यादा राइड्स कर पाएगा, उसका इनकम बढ़ जाएगा, तो वो अपने उसका लाइवलीहुड का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। तो वो हमारा मेन सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं इंडिया में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और फिर प्रोडक्ट्स जो हैं, जो स्कूटर्स हैं, उसको भी अफोर्डेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी हम हीरो मोटोकॉर्प के साथ थोड़ा काम कर रहे हैं, और आगे चल के बाकी लोगों के साथ भी अपॉर्चुनिटी शायद मिले। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपके लिए न्यूज़ व्हील का। जी हाँ, हम बताएंगे ऑटो वर्ल्ड की दुनिया में इस हफ्ते और भी कुछ क्या खास रहा। सुपर बाइक बनाने वाली कंपनी BMW मोटराड ने BMW R1250R को अपडेट किया है, जिसमें इसे एक फुल LED हेडलाइट, कई इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स के साथ जो पहले ऑप्शन के रूप में मौजूद थे उन्हें शामिल किया है। इसी के साथ ही कंपनी ने इस बाइक में नए कलर ऑप्शन को भी ऐड किया है। कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इस बाइक में एक नए LED टर्न इंडिकेटर के साथ एक नया फुल LED हेडलाइट शामिल किया है, जिसमें सेल्फ कैंसलिंग फंक्शन भी मिलता है। साथ ही इस बाइक में कंपनी ने रोड और रेन मोड के अलावा एक नया राइडिंग मोड ऐड किया है, जो दरअसल इको मोड है। BMW R1250R एक रोडस्टर मोटरसाइकिल है, जिसमें कंपनी ने अपना सक्सेसफुल 1254 सीसी का बॉक्सर ट्विन इंजन दिया है। ये दमदार इंजन 134 bhp की पावर और 142 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया। आप अपने सुझाव ज़रूर भेजिए, अपने सवाल भेजिए। हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_jain, इंस्टाग्राम हैंडल @swati_khandelwal_jain, ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एज आई ऑलवेज से, सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। इनफैक्ट अब रेगुलेशंस भी टाइटन हो चुके हैं। सीट बेल्ट पहनिए, आप गाड़ी में आगे बैठे हो या पीछे, डजेंट मैटर, सीट बेल्ट इज मैंडेटरी फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर योर फैमिली सेफ्टी। तो सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, इसको एक आदत बना लीजिए। सिमिलरली जब आप टू व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जय हिंद।